Good evening, ladies and gentlemen. I am Faizan, the moderator for this conference call. Welcome to the sixth Investor and Analyst Conference Call of Ice Make Refrigeration Limited, arranged by Ariana Matasco. Reputation PR and communications focused PR and IR consultancy to discuss the financial results for Q2 and H1 FY21 and the strategic direction for the next year. Ice Make Refrigeration Limited is a leading supplier of innovative cooling solutions and manufacturer of 50-plus refrigeration equipments. The company has been successfully satisfying the need of its customers from production to after-sale service for the last 30 years. The company is engaged in the business of providing customized cooling solutions to diverse set of clients across wide range of industries. We have with us today Mr. Chandrakant P. Patel, Chairman and Managing Director, Mr. Nikhil Bhatt, Vice President Strategy, Mr. Ankit Patel, CFO, and the key management from Ice Make Refrigeration Limited, Mr. Mandar Desai, Company Secretary. At this moment, all participant lines are in the listen-only mode. Later, we will conduct a question and answer session. At that time, if you have a question, please press star and 1 on your touchtone keypad. Please note that this conference is being recorded. I would now like to hand the floor over to Mr. Patel. Thank you, and over to you, sir. गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चंद्रकांत पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी स्टेक होल्डर को आइसमैक की ओर से धन्यवाद देता हूं। आपके सहयोग और समर्थन से दिसंबर 2017 में हमने अपने आईपीओ के रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर रिस्पांस के साथ हमारी कैपिटल मार्केट की यात्रा शुरू की थी और उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए 12 अक्टूबर 2020 में हम एनएसई के मेन बोर्ड में रजिस्टर्ड हो गए हैं। इस वर्ष सभी को अभूतपूर्व परिस्थिति का सामना करना पड़ा है और आइसमैक कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों से अपवाद नहीं है, पर हमें विश्वास है कि हम निकट भविष्य में इस स्थिति से पूरी तरह उभरकर आइसमैक को बड़े मुकाम पर ले जाने में सफल रहेंगे। कंपनी की मौजूदा ऑर्डर बुक 40 करोड़ प्लस है। फार्मा, डेयरी और एक्सपोर्ट के कई सारे ऑर्डर भी शामिल है और इसमें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है। हमने जो पिछले 2 वर्षों से एक्सपोर्ट पर फोकस किया है उसका परिणाम भी अच्छा आ रहा है और आगे भी और अच्छा मिलता रहेगा। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हम 19-20 के टर्नओवर को मैच कर लेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है और फिर आने वाले वर्षों में 25 to 30% ग्रोथ के लिए हम कटिबद्ध है और हमारी टीम भी इसके लिए तैयार है। कंपनी के पास फार्मा सेक्टर में काम करने का अच्छा अनुभव है और हमने एंड टू एंड कोल्ड चेन सिस्टम विकसित की हुई है और उसी के लिए मौजूदा परिस्थिति में कोविड-19 की वैक्सीन ड्राइव में हम हर संभव जरूरतों से निपटने के लिए पूरी तरह से सज्ज है। कंपनी के पास 500 से भी ज़्यादा डेडिकेटेड एम्प्लॉइज की एक बड़ी टीम है जो हर कठिन परिस्थिति में अच्छा परिणाम देने में सक्षम है। अब हमारे सीएफओ मिस्टर अंकित पटेल आपको फाइनेंस अपडेट और मिस्टर निखिल भट्ट बिजनेस अपडेट्स और आगे की स्ट्रेटेजी के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम आपके सवालों के जवाब देंगे। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग। Good evening to all of you. Despite ongoing global pandemic challenges, the company's standalone top line increased by 20% to 30 crores as compared to 25 crores in corresponding period of Q2 FY20. The standalone and consolidated net profit for this period Q2 FY21 stood at 1.91 crores and 1.92 crores respectively compared to 28 lakh loss and 19 lakh profit reported in previous Q2 FY20. The standalone and consolidated top line
for 6-month period H1 FY21 stood at 47 crore compared to 47.74 crore reported in H1 FY21. The standalone and consolidated net profit for H1 FY21 stood at 96 lakh and 48 lakh respectively. During the period, company's EBITDA margin stood at 8.17% compared to 6.74% for corresponding period of H1 FY20. Now over to Mr. Nikhil Vaz first for discussion on business update and strategy. Good afternoon. It is a part of a healthy organization culture at IceMax to take setbacks such as COVID pandemic as opportunity to offer better solutions. IceMax already has a basket of 50 plus innovative products and services that are placed in such a manner and helping the company overcome the prevailing weakness in the overall market. In addition to this, IceMax has fully prepared itself and is strongly geared up to tap opportunities and provide the cold chain solutions to healthcare stakeholders for the much awaited COVID-19 vaccines drive as already informed by our CMD. We have developed capabilities to provide cold chain solutions for COVID vaccination drive right from the point of manufacturing to the point of administration of vaccination. We can provide solutions with variable temperature range for storage and transportation. For this, IceMax has set up proactive end-to-end cold chain equipment systems for pharma industries, hospitals, procurement agencies, and government healthcare systems across the country. Under the leadership of our CMD, we have formed a task force of senior team members who are coordinating with the concerning candidates of vaccine manufacturing in India, government bodies and procurement agencies. Going forward, we will continue to strongly focus on export, new markets and finding solutions. Focus on growing fast emerging online food business by providing innovative solutions. The company has made huge efforts in joining hands with new brands and leading online food companies, which will help not only widen our competitive edge in the market, but also build long-term prospects for growth for our refrigeration and cold storage products. We are also working on plans to put our products on online portals as solutions to address ongoing challenges to tap more customers. And thank you. This is the operator. Sir, should we start the questions and answers? Yeah. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Reminder to the participants, anyone who wishes to ask a question may press star and 1 at this time. The first question is from the line of Avinash G from Profit Mart Securities. Please go ahead. गुड आफ्टरनून चंद्रकांत भाई, बहुत अच्छे नंबर थे आपके। मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो कोविड का भी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन पोस्ट कोविड अभी आपको क्या लग रहा है कि डिमांड का जो सिचुएशन है, स्पेशली फार्मा, हेल्थ केयर, जो एफएमजी सेगमेंट है, इसके बारे में आप कुछ हमको बता सकेंगे कि ग्राउंड लेवल पे अभी कैसा सिनारियो दिख रहा है? और दूसरी बात, आपका करंट ईयर में अभी FY21 में कितना कैपेक्स आपने खर्चा किया है? तो अलग सवाल। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो जो वैक्सीन रिलेटेड था कि वैक्सीन के लिए क्या जो मार्केट में जो बात है उसके लिए क्या स्टेप लिए है, वही है ना? व्हाट आई अंडरस्टूड। हेलो, मैंने बोला कि आपका कोविड वैक्सीन को लेके आपने कोई स्पेशली कोई कैपेक्स किया है क्या? क्योंकि आपने काफ़ी स्ट्रांगली ये पॉइंट बोला है कि आप कोविड वैक्सीन के लिए तैयार हो कूलिंग सिस्टम से, तो इसके लिए कोई एडिशनल कैपेक्स आपने किया है?
एक्चुअली जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हम सर्विस या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेंज में चेंज नहीं आएगा तो हमें कोई एडिशनल कैपेक्स की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, उसके पास इनफ कैपेसिटी है। और जो टेम्परेचर रेंज में हम काम कर रहे हैं, वो टेम्परेचर रेंज की अगर जो वैक्सीन की जो प्रोविज़न है, वैक्सीन अगर वही टेम्परेचर रेंज में सेट होता है तो हमें एज सच एडिशनल कोई मोर कैपेक्स नहीं करना है। ओनली थिंग वी हैव टू मैनेज अवर रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली मैन पावर एंड दी अदर एरिया। ठीक है। चंद्रकांत जी, और एक बात बताइए, ये जो कोविड का भी फार्मा का वैक्सीन होगा, आपके अंदाजे से आपको क्या लग रहा है कि होपफुली ये वैक्सीन अगर फरवरी मार्च में आने की पॉसिबिलिटी अभी सारे लोग बोल रहे हैं, तो आपको कोई प्रीएम्प्टिव कोई तैयारी करनी पड़ेगी, या ये बेसिकली आपको काफ़ी आसान होगा कि अगर महीने भर में आपको अगर बताया जाए कि ऑर्डर आने वाला है तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सब रेडी है, सो स्केल अप के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? एक्चुअली आपको हम आगे भी काफ़ी बार बताया हुआ है कि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें 55% कैपेसिटी ही यूटिलाइज होता है, तो 40% कैपेसिटी सरप्लस है। ओके। पावर और रिसोर्सेज डेवलप करने में वो तो मैक्सिमम हमें 3 to 4 वीक की जरूरत पड़े, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, लेकिन चंद्रकांत भाई, आपके अंदाजे से थी कि आप तो काफ़ी लोगों से बात भी कर चुके होंगे, आपकी टीम, आपने, तो आपको क्या लग रहा है कि मोटा मोटी ये वैक्सीन इंडिया में अगर आएगी तो आपको क्या लग रहा है कब तक आने की उम्मीद रहेगी? तो वैक्सीन के बारे में तो हम नहीं बता सकते क्योंकि, लेकिन वैक्सीन अगर लगता है कि अगले हफ्ते आती है और उनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कोल्ड चेन सप्लाई करने का मौका हम मिलेंगे, तो हमारी कैपेबिलिटी है कि वो मौका समय की वजह से हम लोग मिस नहीं करेंगे। और ठीक है। ये जब से कोविड हुआ तब से हमें तो पता था कि ये कोविड की वजह से हेल्थ केयर को और लोग थोड़ा प्रायोरिटी बनेगा और वैक्सीन होगा तो एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी बनेगा। ओके। तो हमारा हम इक्विप्ड हैं, हम अपॉर्चुनिटी कभी भी आएगा, हो सकता है 1 वीक के बाद या 1 महीने बाद। नहीं, बिल्कुल। अच्छा चंद्रकांत भाई, दूसरे जो सेक्टर है जैसे कि एफएमसीजी है, फिर आपका हेल्थ केयर सेगमेंट है, जो फूड प्रोडक्ट सेगमेंट है, वहाँ से ऑन ग्राउंड क्या आपको इंडिकेशन मिल रहे हैं? अभी कोविड का इफेक्ट थोड़ा कम हो चुका है, स्पेशली महाराष्ट्र में तो काफ़ी कम हो चुका है, बट अक्रॉस द पैन इंडिया जहाँ पे आपके प्रोडक्ट दिखते हैं और आपके जो कस्टमर्स हैं, वहाँ से अभी कुछ रिकवरी के साइंस दिख रहे हैं आपको? एक्चुअली मैंने मेरे फर्स्ट ओपनिंग सेशन में भी बोला था कि हम लोग 1920 में जो बिजनेस किया था उसको मैच कर लेंगे। तो आपको भी पता है अप्रैल मई में सब लोगों ने बिजनेस, शायद हमारा भी बिजनेस 1920 में जो था उनके कंपैरिजन में ना के बराबर था, तो वो लॉस हम पिछले 10 महीने में कवर करेंगे। और हमारा जो सेगमेंट है ना, मल्टी सेगमेंट है, ऑलरेडी हम लोग फार्मा में 15 से 18% बिजनेस फार्मा रिलेटेड प्रोडक्ट में हम पहले से कर रहे थे, तो वो बिजनेस भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और एक बेसिक डाइट और लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए, इसीलिए डेयरी और फूड प्रोसेसिंग में भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है। और ग्राउंड लेवल भी में भी उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को भी लगता है कि ये बिजनेस का एक आने वाला समय और अच्छा होगा। तो अच्छा, मेरा और एक लास्ट क्वेश्चन है अंकित जी को, जो फाइनेंस हैंडल करते हैं। अभी ये जो स्टील के कीमतें जो काफ़ी बढ़ी है, करीबन 40-50% स्टील के भाव बढ़े हैं, प्लस आपका जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर क्या करंट डेवलपमेंट है? लाइक वहाँ पे व्हाट इज द सिचुएशन ऑन ग्राउंड की हैज़ द रॉ मटेरियल प्राइस बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द कंपनी और हैज़ दिस बीन पास्ड ऑन ग्रेजुअली टू द कस्टमर्स? This is the operator. Sorry to interrupt you, sir. We are not able to hear you. Hello. I said, what is the situation on the raw material price increase? Has the raw material prices increased during the last 3 to 6 months? And if they have increased, what is the situation, from the company side? Like, have they passed on this increase or some amount of cost increase has yet to be passed on to the customers? કોસ્ટ મેટલમાં ઇન્ક્રીઝ થયો છે, પણ લાસ્ટ 3 या 6 महीने में नहीं हुआ है। ये स्टेनलेस स्टील का प्राइस अभी
15-20 दिन में थोड़ा इंक्रीज हुआ है, और माइल्ड स्टील में तो रिसेंटली करंटली अभी हुआ है। बाकी एक तो हमारा पीयू केमिकल जो रहता था उसमें था, लेकिन हमारा एडवांस में थोड़ा बुकिंग करवाया था, तो वो हम मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब अभी तक सिचुएशन इन कंट्रोल है, यानी अगर समझो और थोड़ी कीमतें बढ़ेंगी तो आपको थोड़ा सा फिर ये पास थ्रू करना पड़ेगा, राइट? वो मतलब सेल्स और मार्केटिंग की ओर से वो एक्टिविटी चालू हो गया है, और वो थोड़ा प्राइस इंक्रीज कर दिया है, ये दिसंबर 1 से हो गया है। ठीक है, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Varun Seth, individual investor. Please go ahead. Thank you for the opportunity and congratulations on good set of numbers, particularly for Q2. I have couple of questions. So first question, as you said on that COVID vaccine drive, and you clearly said that आप लोग की क्षमता है और आप तैयार है उसको, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ऑर्डर करने के लिए, सर्व करने के लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज के दिन ग्राउंड लेवल पे हम क्या देख रहे हैं? गवर्नमेंट के साइड से ऑर्डर्स आ रहे हैं, कुछ नया हमको ऑर्डर आया है, इंक्वायरीज पाइपलाइन कैसी लग रही है, पर्टिकुलरली ये फार्मा को वैक्सीन ड्राइव के लिए? जी, गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट जो सभी स्टेप ले रही है, और जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट जनरली अगर बड़े प्रोक्योरमेंट है तो टैंडर प्रोसेस से करते हैं, तो गवर्नमेंट के कई सारे हेल्थ सेक्टर से कई सारे टेंडर्स निकले हुए हैं। हमने भी 2-4 स्टेट में पार्टिसिपेशन किया है, और कई सारे इंक्वायरीज ऑन पाइपलाइन में है, जो फार्मा इंडस्ट्रीज से अभी है, या कई सारे एसोसिएशन से भी ये कोविड रिलेटेड इंक्वायरीज आ रही है हमारे पास एक्टिव और दैट ग्राउंड, एंड वी आर प्रोवाइडिंग द वॉट एवर द रीजनेबल कॉस्ट इज है। क्योंकि मेरा जो ग्राउंड चेक है वो ऐसा बोल रहा है कि कोई नई कैपेसिटी है वैक्सीन के लिए शायद ही आए, पुराने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैक्सीन के लिए ये जो कोल्ड चेन्स बने हैं, शायद फार्मिंग के लिए या एनिमल हस्बेंड्री के लिए, XYZ के लिए, वही सभी यूज होंगे टू ड्राइव दिस वैक्सीन ड्राइव। दैट इज मोटा मोटी, उसमें क्या है आपका ख्याल? देखो, ऐसा आपका अंदाज सही भी है, ऐसा गलत नहीं है। हो सकता है, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बिल्कुल है नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत है। हो सकता है वो लोग इस मूवमेंट को कैसे करते, स्प्लिट करके, स्प्रेड करके, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा, क्योंकि कई सारे स्टेट गवर्नमेंट को जो हेल्थ केयर और हेल्थ सेगमेंट के लिए जो बजट सेंट्रल गवर्नमेंट से अलॉट हुए, तो कई सारे टेंडर हम देखते थे कि सालों से वो टेंडर होते थे, लेकिन कभी मटेरियलाइज नहीं हो रहा था। तो पिछले 6 हफ्ते पहले जो हमने तीन शायद 3 जितने टेंडर किए हैं, तो नेक्स्ट टाइम में वो खुलेगा, क्योंकि इनके लिए इनके पास एक प्रायोरिटी फंड भी आया ना, तो ये प्रोक्योरमेंट का अपॉर्चुनिटी तो रहेगा ही रहेगा, अगर वैक्सीन में नहीं भी होगा तो। और एक आई थिंक थोड़े दिनों पहले ब्लू स्टार को कुछ 200 करोड़ का ऑर्डर मिला है फॉर दिस कोल्ड चेन वैक्सीन, तो वो उसमें हम लोगों ने बिड किया था या हम लोगों ने बिड नहीं किया था, और या फिर वी हैव लॉस्ट दैट, या उसमें क्या सिनेरियो है? एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि जो आपने जो सुना हमने भी वही सुना था, मगर रियल ग्राउंड पे कुछ अलग पिक्चर भी हो सकता है, क्योंकि बस 200 करोड़ का ऑर्डर किसी को मिलना एक बहुत बड़ी इवेंट होता है, पर्टिकुलरली रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज में। तो इधर ऐसा कोई सपोर्टिंग या ऑफिशियल में कोई अनाउंसमेंट हमारे पास नहीं है जो हम इसके बारे में कुछ कमेंट कर सके, मगर जैसे साहब ने बताया कि ऑलरेडी ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस चालू है, तो somebody has offered that, कहीं प्रोसेस में भी हो सकता है, मगर ऐसा कोई रियलिस्टिक डेटा हमारे पास नहीं है। अच्छा, और एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है एक्सपोर्ट के साइड पे। जैसे आप लोगों ने बोला कि 1-2 साल से यू आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स एक्सपोर्ट एंड ऑल, तो कुछ एक्सपोर्ट पे अभी प्लानिंग एनी जॉइंट वेंचर अपॉर्चुनिटीज और समथिंग टू टैप दिस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, और इज देयर एनी डिस्कशंस गोइंग ऑन अराउंड दिस?
एक्सपोर्ट के बारे में बताया कि हमने पिछले 2-3 साल से एक्सपोर्ट के लिए प्योरली फोकस किया है। और पहले क्योंकि हमारा इंडस्ट्री जो बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो सर्विस रिलेटेड है, तो हमें लोकल सपोर्ट चाहिए। तो 1-2 साल से हम वही भी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की जो लोकल एजेंसी है, लोकल ट्रेडर्स है, कि जो सर्विस के साथ ये सेल्स का भी सपोर्ट करे, तो हम वही बेस को पकड़ के हम आगे जा रहे हैं। और हमारा खुद का भी नेटवर्क जो है हम सर्विस वहीं भी प्रोवाइड करते हैं, मगर ये आप लोकल लेवल पे अगर कोई ऐसा एसोसिएशन होता है तो इट इज़ बेटर। और हमने 2-3 कंट्रीज में हमारी ओर से जो एफर्ट्स करने थे वो एफर्ट्स हमने किए हैं, और 2-3 एजेंसी के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन भी हो गया है, और इसी वजह से हमें एक्सपोर्ट लगता है कि वो एरिया में ज़्यादा जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट आइसलैंड ने जो पिछले 7-8 साल पहले जो एक एक्सपोर्ट जो करती आई है, वॉल्यूम कम था मगर एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो पुराने जो हमारे कस्टमर है वो भी एक रेफरेंस की ओर से अभी रिसेंटली इस साल में हमें वो पुराने कस्टमर के भी साथ हमारा एसोसिएशन हुआ है, और कंटिन्यूस ऑर्डर्स हमें मिल रहे हैं, और वो भी एक वैल्यूबल साइज बोल सकते हैं कि इस साल वही एक्सपोर्ट के भी सपोर्ट करेगा। तो एक्सपोर्ट के लिए हमें काफ़ी उम्मीद है। और यहाँ तक जो ये 8 महीने का जो सवाल है वो पिछले साल से ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट हुआ है, और हमारे पास अभी भी पेंडिंग ऑर्डर करीबन 2.5 करोड़ के ऑलरेडी ऑर्डर इन हैंड है एक्सपोर्ट। तो कोई जॉइंट वेंचर किसी फॉरेन पार्टनर के साथ या ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हम? नहीं, ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा तो ऑलरेडी बिजनेस के लिए तो अपॉर्चुनिटी सभी लोग तैयारी है, और वो हम सोच रहे नहीं है, उसको इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। और यूएस बेस्ड एक पार्टी है जो वहाँ ये बिजनेस कर रही है, तो उसके साथ हमारा एक पॉसिबल टाई अप है, उसका हमारे पास ऑर्डर भी आया है। और ये एसोसिएशन जैसा भी आगे जो आप जानना चाहते हैं वो हो सकता है, मगर अभी ये एक स्टेज नहीं है कि जो हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा आपको बता सकें। ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ये मोदी जी कुछ लग्जमबर्ग कंपनीज को गुजरात में ला रहे हैं, और उसमें भी बहुत चर्चे में आया था न्यूज़पेपर में, वो लोग वैक्सीन के लिए और कोल्ड स्टोरेज में काफ़ी उनका टेक्नोलॉजी है, तो वो आ जाएगा तो अपना कंपटीशन बढ़ जाएगा। और अपना क्या है सोच उसके बारे में? करें म्यूट करें। वो जो आप बात कर रहे हो लग्जमबर्ग की कंपनी की, वो सही है। और उन लोग की जो सीनियर टीम है जो कंपनी की ओर से, वो इंडिया में अभी है, और 10-15 दिन से वो इंडिया में विजिट कर रहे हैं। कहीं लोकेशन पे उन लोगों ने विजिट किया है। और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई है। और हमारी कंपनी की जो बैकग्राउंड है, हमारी कंट्री का जो प्रोडक्ट है कंपनी की, तो उसी अकॉर्डिंगली उन्होंने भी एक इंटरेस्ट बताया है। और 2 दिन पहले जो गुजरात गवर्नमेंट के साथ मीटिंग थी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ओर से कई सारे वेंडर्स को बुलाया, और ये कंपनी के साथ मीटिंग हुई थी, प्राइमरी डिस्कशन हुआ था उनकी रिक्वायरमेंट क्या है वो समझने के लिए। और उसमें से उन लोगों को जो लगा, वो हमारी कंपनी की उन लोगों ने 2 दिन पहले विजिट भी किया है, और दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड। और उन लोगों का जो भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगा, वी आर होपफुल कि वो शायद उसकी में पॉजिटिव वे में हम आगे जा सकते हैं। उसका अनाउंसमेंट कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, एक्सपेक्ट उसके बारे में हम नहीं बता सकते कि स्टेज आया नहीं है। हो सकता है कि जल्दी कोई ऐसा कोई अनाउंसमेंट करने का हमें मौका मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद चंद्रकांत भाई, धन्यवाद। Thank you. The next question is from the line of Pranav Thakkar, individual investor. Please go ahead. हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कोरोना वैक्सीन के लिए अपॉर्चुनिटी तो है हमारे पास, बट जो हमारा रूटीन बिजनेस है, तो वो रूटीन बिजनेस का हम मिक्स कैसे देख रहे हैं? मतलब से अगर 1 जनवरी से वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बिकॉज आपको भी थोड़ा आइडिया होगा कि what exactly demand is there and what the revenue. Basically, I would like to understand the revenue metrics. Okay. अगर करंट ईयर की रेवेन्यू की हम बात करें, तो जो पिछले साल का हमारा टॉप लाइन था उसको हम इस साल में मैच करने का पूरा ट्राई करेंगे। हो सकता है वो मैच हो जाए इस साल में। एंड अदर जो रेवेन्यू में जो हमारे
हाँ यस राइट सर ओके। जो अदर जो भी हमारा अभी ऑनगोइंग बिजनेस है उसमें ये जो लो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ड्रायर है जो हमने जो R&D से डेवलप किया हुआ था उसके भी काफ़ी अच्छे हमें ऑर्डर्स मिले हुए हैं। जो H1 मतलब जो अभी का हमने रिजल्ट पब्लिश किया था उसमें आई थिंक अराउंड 58 लाख का उसका डिस्पैच हुआ था। पिछले साल वो 45 लाख का पूरे साल में हुआ था और अभी भी हमारे पास उसकी पेंडिंग ऑर्डर बुक अराउंड 60 लाख के करीब है। दूसरा एक प्रोडक्ट जो हमने R&D में डेवलप किया हुआ था फ्रीज ड्रायर जिसके हमें 1.75 करोड़ के ऑर्डर हमें मिले हुए हैं। आई थिंक वो हाँ यस वो मिले हुए हैं। कुछ एक OEM से नॉर्थ में हमारा एक एसोसिएशन भी हुआ है जिसका भी हमें लगता है कि इस साल से हमारा बेनिफिट उसमें स्टार्ट हो जाएगा। कुछ एक जो रिफर वैन सेगमेंट है उसमें भी लीडिंग व्हीकल मैन्युफैक्चरर से हमारा कुछ एक टाइप हुआ है तो पिछले साल हुआ था तो कुछ एक इस साल में भी हमने पाइपलाइन में कुछ किया हुआ है तो शायद उसका बेनिफिट भी हमें मे बी इस साल से भी मिलना स्टार्ट हो। दूसरा जो अभी कंट्री का फोकस है वो जो चाइना साइड से लेके दूसरी कंट्रीज की तरफ झुका हुआ है तो उसमें भी हमें एक्सपोर्ट की काफ़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। उसमें भी जो जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रेटेजी ने बताया था US की एक कंपनी है तो उनके साथ हमारा टाइप और ये सब हमारा अभी डिस्कशन में है। उसके कुछ एक कंटेनर तो हमने ऑलरेडी डिस्पैच किए हुए हैं इसी साल में। तो जो डेयरी और टन की सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया हुआ था उसमें भी हमने इस साल अराउंड 2.5 करोड़ का डिस्पैच आज के दिन तक किया हुआ है और बाकी का जो पाइपलाइन में है वो अराउंड 2 करोड़ के आसपास है। उसका गुजरात जो हमने पिछले साल ही स्टार्ट किया हुआ था हमने गुजरात राजस्थान MP में शायद काम अभी चल रहा है और नेपाल में भी हमने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है। और दूसरा एक अपडेट ये है कि अभी तक काफ़ी इन्वेस्टर्स से और ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये डेवलपमेंट बताना थोड़ा ज़रूरी है। हमने अभी तक जो वर्टिकल वाइज और ये क्या प्रॉफिटेबिलिटी है उसके रिगार्डिंग हम आपको आंसर दे नहीं पाते थे पर अभी ये जो रिक्वायरमेंट है और मैनेजमेंट की भी जो इंटरनल रिक्वायरमेंट थी उसको ध्यान में रख के हमने टायर 1 ERP सॉल्यूशन इस बार प्रोक्योर किया हुआ है जिसका इम्प्लीमेंटेशन अभी चल रहा है। वो एक बार हो जाएगा तो ये जो दूसरी रिक्वायरमेंट है जो इन्वेस्टर की ओर से आ रही है हमारी भी कुछ एक इंटरनल रिक्वायरमेंट थी वो भी हम डेवलप कर लेंगे। तो अभी के जो बिजनेस प्लानिंग है और जिस हिसाब से हमारा ग्रोथ चल रहा है हमें लग रहा है कि आने वाला फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। हमारा जो एसोसिएशन और नई प्रोडक्ट में भी काफ़ी होप दिख रही है तो वी आर क्वाइट होपफुल। तो सर ये कोविड की वजह से जो भी सप्लाई चेन बनेगा तो दैट रेवेन्यू विल बी ऑन ओवर एंड अबाउ whatever our last year revenue, am I right? हाँ वो पॉसिबल है मगर जैसे अभी कोविड वैक्सीन के ड्राइव कैसा आएगा दैट इज अनसर्टेन वेरी मच। मगर वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो नेचुरली वो एक एडिशनल पुशबैक होगा। और जैसे अंकित जी ने बताया कि हम कई सारे सेगमेंट और कई सारे वर्टिकल में प्रोसेस कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो हर एक जगह से एक हमें उम्मीद है क्योंकि इस साल आप सब जानते हैं कि इनिशियल 2 महीने अप्रैल और मई सभी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ख़राब थे और पर्टिकुलरली आइसमेक के भी उसकी इफेक्ट हुई थी मगर उसके बाद जो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है पर्टिकुलरली हमारे जो मल्टीपल सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमें मिला है। मगर कहीं कहीं जगह पे कहीं स्टेट में जो अभी थोड़ा नॉर्मलाइजेशन जैसा लगता है तो इसी उम्मीद के साथ हम वो देख सकते हैं कि ये इस साल का जो पुराना लास्ट ईयर का जो हमारा नंबर्स थे वो हम अचीव कर पाएंगे। कोई का अगर कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो वो नेचुरली अमाउंट बढ़ेगा वैसा हमें भी उम्मीद है। अभी ये जो कोविड का ड्राइव चल रहा है आई थिंक हमने 2-3 महीने पहले एक हमने टास्क फोर्स की जो शुरुआत की हुई थी और हमने काफ़ी सारे जो लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर है उन सबको कांटेक्ट किया हुआ था। अभी उस चीज़ में ऐसा भी हो रहा है कि कई लोग मतलब कुछ एक इंक्वायरी से ऐसा अभी भी डेवलप हो रहा है वो सारी अभी पाइपलाइन में है इसलिए एकदम कंफर्म या वैसा हुआ नहीं है तो अभी हम बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमने जो एफर्ट किया हुआ था उसकी सारी इंक्वायरीज और लीड अभी जनरेट हो रही है तो जैसे ही अगर वो मटेरियलाइज होता है वो हमें लगता है कि भाई उसका भी बिजनेस वी आर एक्सपेक्टिंग क्योंकि काफ़ी सारे इंक्वायरीज और ये डिस्कशन अभी चल रहे हैं तो वो जैसे ही मटेरियल हो जाएंगे अभी हुए नहीं है पर वी आर क्वाइट होपफुल कि उसका भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। Thank you for detailed explanation. Thank you. Thank you.
Reminder to the participants, anyone who wishes to ask a question may press star and one. The next question is from the line of Akash Shah from Sky Infotech. Please go ahead. Thanks for allowing me, and many congratulations for the listing on NSE main board. So my question is basically this COVID opportunity which we keep on talking, right? It is a one-off tailwind which we all know. But what is the size, if at all, IceMake gets an opportunity? So what is the amount of top line which we are looking for with respect to our capacity, and so far what we have proposed to many leads and potential customers? See, actually, what we are trying to know, it is very difficult to say at right moment. But what we can do and what we have just explained earlier, whatever the business we have done in last year, we are just going to maintain in that our first target is that, and we are also hopeful looking to the current market situation of order on hand and the past order we have dispatched. So that is the first step going to achieve. And so far as corona vaccine is concerned, till now it is difficult to say on any in terms of numbers how much it will be, because ultimately there are 2 points. One is the high demand will be there, or second point is that whatever the infrastructure is that government can manage from that. So these are the both two views. So it is difficult to judge the numbers right now, but whatever the demand will be increased, additional demand will be there. We are hopeful that some share will be also will get on that part. Okay, तो आपका कहने का मतलब है कि we still because we have not tied up with any of those firms yet. अपने पास कोई tie up नहीं है, maybe with government of Gujarat or where our manufacturing facilities are, but we will get some pie of it. Right, that is true. Because we are providing the solutions not from today, we are providing solutions to many pharma companies. And we are also doing a 10 to 15% business every year to the pharma industry. But we didn't see any peak, or we are not expecting any peak from pharma companies, including where they were selling remdesivir and other vials in dry ice, which was not done in last year. Yeah. And see, we have a past track record of the supply of walking cooler, particularly to the many government organizations, and we have successfully completed the 5 years, 3 years comprehensive maintenance contract also. And particular vaccine we have supplied to the Ministry of Government of India through the Ministry of Health and Family Welfare in past already 5 years back. So it was only for the government medical store depot for the vaccination in the metro city. So we have a quite experience and we have quite reference for that. So there is no doubt if we got any opportunity, and we will be fulfilling that. But to define the numbers, it's very difficult because there is no tie-up made by any government with any companies right now as per our information. So, sir, what you're trying to say is that the government is planning to have vaccination started in January, but they have not yet tied up with any cold storage except the Snowman and the Bayer Material or Blue Star, the bigger players. See, actually, as per our information, we don't have any information regarding this tie-up with the government or any pharma companies with anybody company in India. So, except this Luxembourg, those who are visiting India, and they are just assessing the possibility of business association with the Indian government and the Indian companies. Okay. And any impact of this broad level raw material if we are consuming from China? Hello. Was I audible? Yes, it is audible. अगर चाइना से प्रोक्योरमेंट की बात करें, जैसे प्रीवियस कॉल में भी बात हुई थी, तो हमारा जो चाइना से प्रोक्योरमेंट होता था उसकी हमने अल्टरनेट
चैनल और वो खोजना पहले से ही स्टार्ट किया हुआ था। अभी हम देखें तो अभी इस साल जो चाइना से इंपोर्ट हुआ, टोटल हमारा इंपोर्ट 1.72 करोड़ है। उसमें 1 करोड़ का प्रीवियस ईयर में, मतलब चाइना में जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ था उस टाइम से हमारा वो ऑर्डर स्टक हुआ था, वो इस साल हमें मिला है। पर इस साल और ऑर्डर हमने चाइना से किया हुआ नहीं है। और बाकी जो भी हमारा जो इंपोर्ट हो रहा है हमारा सार्क से हो रहा है, जैसे थाईलैंड हो गया, सिंगापुर, मलेशिया हो गया। एंड बेसिकली कॉपर है और जीआरपी है जो हम रिफर व्हीकल में यूज करते हैं, उसका मेजरली इंपोर्ट। और कुछ एक एसेसरीज और वो सब भी हम इंपोर्ट करते हैं, शायद कुछ एक इटली से आता है। तो बेसिकली देखें तो हमारा इंपोर्ट का पोर्शन जो पिछले पूरे साल में हम देखें तो 5 करोड़ था। अभी इस साल हमने इन हाउस मैन्युफैक्चर किया हुआ है तो वो पोर्शन रिड्यूस होगा। तो भी हमारा इंपोर्ट होगा वो हमारे सार्क कंट्रीज में से होगा मेजरली। और जीआरपी का मटेरियल है वो हम जर्मनी से इंपोर्ट करते हैं, और कुछ एक इटली से कुछ ऐसा नेसेसरीज हो सकता है, उससे ज़्यादा हमारा इंपोर्ट नहीं होगा। So are we seeing any impact on the bottom line? अभी का जो हमारा रॉ मटेरियल के प्राइजेस है अभी तक वो स्टेबल थे। कुछ एक हमारे पॉप में जैसे राजेंद्र साहब ने बताया हुआ था, हमारे प्राइस जो हमने डिस्कस किए हुए थे हमारे कोटेड प्राइस पे अभी हमें सप्लाई हो रहा है। कुछ एक रॉ मटेरियल के प्राइस हमारे इंक्रीज हुए हैं, लेकिन जो कोविड की वजह से हमारे कुछ एक एक्सपेंस है वो सेव होने वाले हैं, जैसे कि एग्जीबिशन है, ट्रैवलिंग है। जो पिछले साल में अराउंड 2 करोड़ के आसपास हमारा ट्रैवलिंग का बजट था, अभी जो कोविड सिचुएशन है और हमारे एग्जीबिशन भी काफ़ी कम है, तो ज़्यादा एग्जीबिशन में भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो कुछ एक एक्सपेंस में भी काफ़ी सेविंग होने वाला है। बट सर वो वन ऑफ रहेगा ना, because of this COVID, maybe next after the vaccination starts, right, those expenses will be back. So does it mean that because of this import structure, we will have some impact on the EBITDA level or OPM level and ultimately on the bottom line? हमारा EBITDA अभी का हमारा जो EBITDA लेवल होगा, मतलब यू मीन टू से वो पिछले साल है उतना होगा, या शायद स्लाइटली थोड़ा सा इंक्रीज भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस टेम्पररी डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर। करेक्ट। In current year, we are not expecting any dip in EBITDA margin. हो सकता है slightly वो improve भी हो इस साल। हाँ। But those are one-off gains. What I'm trying to ask is, in coming years or in coming quarters, once this COVID cost which you have saved, आपने जो बचाया है, उसके बाद ये सब जो एक्सपेंस आपको थोड़े एक्स्ट्रा लग रहे हैं, मे बी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग से थोड़ा बच रहा है, बाकी सब कंट्रीज जो 4 कंट्रीज आपने नाम दिया उससे अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपका कॉस्ट इंक्रीज होने वाला है। इज दैट ट्रू? बेसिकली हमारा EBITDA मार्जिन जो रहेगा वो 10 to 11% स्टेबल रहने वाला है। जो हमने कुछ एक वर्किंग और हमारा जो प्लानिंग है कि किस हिसाब इतना मार्जिन रख के हम चलेंगे, वो हम 10 से 11% एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर कमिंग ईयर्स में, बिकॉज वी आर फोकस अब टॉप लाइन बढ़ाने का भी हमारा एक फोकस है। ओके, सो ऑन द सेम थिंग जस्ट वन एक्सटेंशन लास्ट, ये जो एग्री मार्केट से जो पूरा ओपन हुआ है वहाँ जो कोल्ड चेन का अपॉर्चुनिटीज है, राइट, एनीथिंग विच आर कंपनी स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर और trying to partner with the retail partners where retail chains are going, or do we have some strategy for that? एग्रीकल्चर बिल होगा और एग्रीकल्चर में जिस प्लानिंग से गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हुए हैं, तो हमें लगता है कि उसमें कॉरपोरेट और प्राइवेटाइजेशन होने से जो अभी एक्चुअल फार्मर है कोल्ड चेन या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करते, तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन देखो ऐसा कि हमें लगना और होने में काफ़ी फर्क होता है। ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी में एग्रो फूड प्रोसेसिंग में पॉपुलेशन को देख के हमारी कंट्री की एक स्पेशलिटी की वजह से बड़ा बिजनेस हो सकता है गवर्नमेंट की ये पॉलिसी और रूल्स उसमें एक पास करे और हमें जल्दी से उस अपॉर्चुनिटी बड़ा ओपन मार्केट पोटेंशियल भी मिले। और ये जो पेनिट्रेशन है, जो रिटेल पार्टनर्स जैसे रिलायंस रिटेल है, जियो मार्ट है, राइट, एनीथिंग वेयर वी आर ट्राइंग टू फॉर्ज अ पार्टनरशिप और वेंचर्स विद देम?
because those are established. I can understand agriculture में आपने बोला कि अभी it's very nascent stage या नया है अभी, right? And I guess what I understood is अभी अपनी कंपनी के पास ऐसा कोई strategic plan नहीं है, but जो established retail players है उसके साथ cold chain सबको चाहिए होता है. Do we try to get there in that market? देखो, रिटेल चेन में हम लोग स्विगी से काम करते, बिग बास्केट हम लोग काम करते, रिलायंस को सालों पहले हमने काम किया हुआ है, स्पेंसर, बिग बाजार, ये सब हमारे पुराने कस्टमर रहे हुए हैं. और कई सप्लाई ऐसा होता है, आप भी जानते हैं कि हमारी सप्लाई के साथ में साइट सर्विस भी लगते हैं. तो हमारे कई सारे OEM हैं, वो हमारे से सप्लाई पार्ट लेके ये जितने भी ऑनलाइन रिटेल और डिजिटल प्लेटफॉर्म को सप्लाई करते हैं. तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ मार्केट तो है जो हम उस सेगमेंट को कैटर करते हैं. अभी कोई सॉलिड किसी से मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ हमने रिलायंस से कोई रेट कॉन्ट्रैक्ट किए है और साल के हमें इतना बिजनेस मिलेगा. ओके. और ये जो लास्ट क्वेश्चन है यूटिलाइजेशन पे, जो आपने बोला कि 55% अभी यूटिलाइजेशन हो रहा है, 45% मेरे पास फ्री कैपेसिटी है जो कोविड के लिए भी यूज हो सकती है, राइट? तो ये यूटिलाइजेशन इंक्रीज करना या ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है कि यही यूटिलाइजेशन पे वर्कआउट होता है? नहीं, अगर कैपेसिटी की जो नंबर्स की बात करें परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू, तो बेसिकली मार्केट है तो कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन है. और हमारे पास जो अभी एक्सेस कैपेसिटी है उसका 2 रीज़न है. पहले भी हमने काफ़ी बार बताया है कि हमें 1-2 साल पहले एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ अच्छे प्राइस पे हमें मशीनरी मिली थी जो हम हाई वॉल्यूम पे या हाई कैपेसिटी के साथ काम कर सकते थे. तो उसी टाइम हमने एक लो प्राइस में अच्छी इक्विपमेंट हमें परचेज कर लिए थे, तो जो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है. और जो मार्केट कंडीशन है वो मार्केट ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट के बारे में, तो वो कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नंबर्स बढ़ेंगे. मगर एक्सेस कैपेसिटी का यही एक लॉजिक है, यही एक रीज़न है कि हमारे पास जो कैपेसिटी है वो लार्ज कैपेसिटी की वजह से और बहुत कम कैपेक्स के साथ हमें कैपेसिटी बढ़ाने का मौका मिला था, तो हमें ले लिया है. और मार्केट हमें मिलने वाला है इस साल कोविड की वजह से थोड़ा बहुत इफेक्ट होगी, मगर रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज का एक बड़ा अच्छा फ्यूचर है. और जो लोगों की माइंडसेट है और लोगों की लिविंग स्टाइल जो बदल रही है, तो फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर बेस्ड जो आप बताना चाह रहे हो, वही एरिया में काफ़ी सारी डिमांड आने का अपॉर्चुनिटी है. Okay. I thank you very much for answering all my questions, and I expect that in upcoming quarters we see different industries our company caters to. Thank you. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Darshit Shah from Nirvana Capital. Please go ahead. या सर, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी. सर मेरा क्वेश्चन एक तो ये था कि जो हम बता रहे हैं कि हमने यूएस क्लाइंट के साथ कुछ कंटेनर्स भी भेजे हैं एंड एक पॉसिबल टाइप आल्सो वी आर प्लानिंग. सो बेसिकली वो कौन से मार्केट, इज इट फॉर यूएस मार्केट और कौन विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग वहाँ सप्लाई कर रहे हैं वो पर्टिकुलर क्लाइंट को? इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट. हमारा जो वॉकिंग कूलर की जो पैनल आती है ना, वो हम देते हैं और डिस्प्ले मार्केट में वो जाता है रिटेल शॉप में, और अमेरिका और यूरोप ये दोनों मार्केट में वो सप्लाई करते हैं. ओके. सो बेसिकली सर आई डिडंट अंडरस्टैंड, वो यूज कहाँ पे होता है सर ये डिस्प्ले पैनल और ये वॉकिंग कूलर रिटेल? तो जो शॉपिंग रहता है ना, शॉपिंग मॉल, और उसमें शॉप रहता है ना, उसमें ये अपना बटर है और ये कोल्ड ड्रिंक है, उसके लिए जो डिस्प्ले के साथ में आगे से दरवाजा ग्लास वाला खोल के अपने आप लेना है सामान, तो वो ऐसे ले लेते हैं. एकदम ग्लास ऊपर रहता है, एकदम डिस्प्ले होता है, ऊपर के साइड में लाइट वगैरह रहता है, और ये अमेरिका में इसकी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, इसके सिवा शॉप चालू होता ही नहीं है. तो ये बेसिकली यूएस और यूरोप दोनों के लिए हम ये क्लाइंट को सप्लाई कर रहे हैं. यूएस क्लाइंट यूरोप में सप्लाई करता है, हम उनको अमेरिका में देते हैं.
अच्छा, सो वो बेसिकली यूएस से यूरोप जाता है, आप ऐसा बता रहे हैं? उसमें क्या है, वो स्टैंडर्ड पैनल का एक कैलकुलेशन करके बन जाता है, फिर उनके वेयरहाउस में मटेरियल पड़ा हुआ रहता है, तो 3 ग्लास का चाहिए, 4 ग्लास का चाहिए, 6 ग्लास का चाहिए, तो वो पूरा सेट करके ग्लास के साथ में रेफ्रिजरेशन के साथ में पूरा पैकेज करके वो भेजता है। तो वो नंबरिंग के साथ में जाएगा तो ही असेंबल होगा, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम होता है ना, इसलिए वहाँ ले जाना कंपलसरी है। ओके। और सर ये ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा क्वांटिफाई करना, पर ये कितना अपॉर्चुनिटी हो सकता है हमारे लिए फ्यूचर में इन केस इफ वी टाई अप विद देम फॉर नॉर्मल सप्लाई? अभी का हम ऑर्डर देखें तो 58,000 यूएसडी का ऑर्डर अभी हमारा रनिंग चल रहा है, और उसका टाई अप हो गया जाएगा, या हमारा जो अभी डिस्कशन चल रहा है, तो इसके सारे रनिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं। मतलब उनके जो भी ऑर्डर या वो आए उसका ऑनगोइंग बेसिस पे हमारा डिस्पैच चलता रहेगा। इट्स लाइक और डीलर OEM, उस हिसाब से हमारा कंटेनर भी एक्सपोर्ट हो सकता है। नहीं, और उन्होंने ऐसे अमेरिकन ये डीलर जो है ना, उनका तो ऐसा बोलना है कि आप मुझे ये अमेरिका के लिए आप मुझे डीलर बना दीजिए, बिजनेस मैं वहाँ से ही करूँगा, लेकिन कंपनी ऐसा हाथ मांगने वाला काम करने वाली नहीं है, क्योंकि आज इसके साथ भी काम करते, अमेरिका इतना बड़ा है तो वो हर स्टेट में वो अकेला तो काम कर नहीं सकता है, कल 2 कंपनी के साथ में और टाई अप करना होगा। तो फिर हमने ना बोला कि हम आपके साथ में अभी जो कर रहे हैं वो टेंटेटिवली 6 महीना 8 महीना तक आपको ही देंगे, बाकी का कोई कमिटमेंट हम नहीं देंगे, तो ऐसा हमने कोई लिख के भी नहीं दिया, इसीलिए। बाकी वो तो बोल रहा है कि आप मुझे दे दीजिए ऐसा करके। तो सर हम प्लान कर रहे हैं कि यूएस में बाकी कंपनीज के साथ टाई अप करें, या हमारा खुद का कुछ वहाँ पर सेटअप करें मार्केटिंग के लिए? मतलब हाउ आर वी प्लानिंग, जो जैसे आप वो बोल रहे हैं कि वो सप्लायर बता रहा है कि मार्केट बेसिकली है वहाँ पे, और 2 पार्टी के साथ में भी बातचीत चल रहा है, और एक पार्टी के साथ में हमने बिजनेस भी वर्क किया है, लेकिन ये एक्सपोर्ट का और अमेरिकन और ये बाकी का कंट्री में क्या होता है कि एक बार थोड़ा रिलेशन बनना चाहिए, एक आध जाए, सैंपल लगे, बाद में उनको एक विश्वास बने, फिर ऑर्डर आ जाए तो फिर रुकता नहीं है, ऐसी बात। करेक्ट करेक्ट। तो हम बाकी लोगों के साथ भी मतलब वी आर ट्राइंग टू गेट इन टच। बिल्कुल बिल्कुल। और सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे था, तो आप कब तक सोच रहे हैं कि वी वुड बी रीचिंग एट ऑप्टिमम कैपेसिटी इन नेक्स्ट हाउ मेनी इयर्स? आपके अंदाजे से आपको लग रहा है कि हम पहुंच सकते हैं वहाँ पे? नहीं, कैपेसिटी में साहब ऐसा है ना कि कभी कभी कैपेसिटी 110% पे भी चलता है, लेकिन ये जो 55% की जो बात कर रहे हैं ना, तो ये रेफ्रिजरेशन सीजन नॉन सीजन रहता है, तो कभी कभी ऐसा होता है, तो पूरी साल की जब कैपेसिटी निकालते हैं तो ऐसा होता है, और 4 महीने का बोलते हैं तो 100% पे चलता है, तो मतलब ऐसा होता है। तो ये कैपेसिटी यूज करने के लिए ये कुछ होगा तो हम कर लेंगे, ऐसा है। और अभी मैन पावर में थोड़ा बहुत ज़्यादा करके ये कैपेसिटी यूज करना वो बड़ी बात नहीं है। करेक्ट करेक्ट। और सर दूसरा एक मेरा फाइनेंस पे जो क्वेश्चन था कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट्स हमारे सेकेंड हाफ में आते हैं, तो इज इट दैट आपके जो फिक्स कॉस्ट है वो मोस्ट ऑफ द देम आर गेटिंग एब्जॉर्ब H2 में, जहाँ पे हमारा रेवेन्यू भी आई थिंक थोड़ा साइजेबल रहता है, सो दैट इज द रीजन दैट मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स अराउंड 80-90% ऑफ द प्रॉफिट कम्स इन H2 सेकेंड हाफ? ठीक है, हमारे जो फिक्स एक्सपेंस है वो तो ओवर द ईयर मोर और लेस सेम रहेंगे, जैसे सैलरी हो गया और बाकी सब रेंट, मतलब वो सब हो गया। तो 60% बिजनेस सेकंड हाफ में हम करते हैं, तो सेकंड हाफ में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी फर्स्ट हाफ के कंपैरेटिव में ज़्यादा रहती है। और क्वार्टरली हम देखें तो Q4 और Q1 उसमें हमारा थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Hiten Boricha from Joindre Capital. Please go ahead. Hi sir, good evening. Thanks for the opportunity. So my first question is on the order book sir. So हमारा current order book करीब 40 करोड़ है. So what kind of order inflow we are expecting in second half, excluding this
कोविड-19 सिचुएशन, तो हम क्या ऑर्डर इनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कहाँ से आ सकते हैं ऑर्डर? 40 करोड़ के अलावा? हाँ सर, हमारा करंट ऑर्डर बुक अभी 40 करोड़ है, राइट? हाँ हाँ, तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेकेंड हाफ में हमें ऑर्डर आने की, मतलब कितने अमाउंट ऑफ ऑर्डर आने की संभावना है सर ये सेकेंड हाफ में? लाइक अभी हमें कोई नया ऑर्डर मिल रहा है, कहीं पे किसी से बात चल रही है, ऐसा कुछ? इट इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस। हमारे पास कंटिन्यूस इंक्वायरीज और ऑर्डर प्रोसेसिंग की जो सिस्टम है, सॉल्यूशन हम देते हैं, वो चल रहा है। और जैसे पहले आपने सुना कि सेकंड हाफ पर्टिकुलरली हमारा हाफ ज़्यादा होता है, स्ट्रांगली होता है। और सीजनल देखें तो अक्टूबर ऑनवर्ड टू मई जून तक एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है और बिजनेस एक्वायर भी होता है। तो हमारा पास्ट रिकॉर्ड देखे या कोई भी देखे तो सेकंड हाफ विल बी मोर स्ट्रॉन्ग। तो अभी हमारे पास 40 करोड़ के ऑर्डर जो हाथ में है और बाकी 4 महीना जो बाकी है दिसंबर टू मार्च ये साल का, तो वो एक हाई ऑलवेज हमारा फोर्थ क्वार्टर ऑलवेज हाई रहता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो जैसे हमने पहले बताया था कि जो पुराने लास्ट ईयर का जो बिजनेस था वो हम मेंटेन करेंगे। तो आज फर्स्ट हाफ में हमें ऑलरेडी 47 करोड़ तक तो आ गए हैं। तो बाकी के जो सेकंड हाफ है उसमें ऑलमोस्ट 80-90 करोड़ का बिजनेस होने का चांसेस है। ओके ओके ओके, तो ये ऑर्डर बुक 40 करोड़ से बढ़ के 80-90 करोड़ हो जाएगा। इज माई अंडरस्टैंडिंग करेक्ट सर? पुराने ऑर्डर भी तो क्लियर हो जाएंगे ना, वो तो 40 जो है वो मैक्सिमम है। और अब आने वाली सीजन की वजह से अभी जो है और अगले 2 महीने तक बुकिंग हाईएस्ट होता है। बाद में बुकिंग ऑर्डर क्लियर होते जाते तो बुकिंग थोड़े से कम होंगे। लेकिन आपका जो सवाल है कि बाकी के ऑर्डर कहाँ से आएंगे, उसका स्पेसिफिक जवाब नहीं होता। क्योंकि जैसा होता है ना, कोई रिटेल शॉप लेके बैठता है आज कौन कस्टमर आया, वो नहीं है। क्योंकि मार्केट की भी अपनी एक नीड है ना। और आइसमैक की एक स्पेशलिटी है कि कुछ काम के लिए लोग घूम फिर के हमारे पास ही आते हैं। हम कई सारे रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट में एक अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं। हमारे एवरेज ऑर्डर जो है फ्लैट टाइम में भी 10 करोड़ से नीचे नहीं होते हैं और 22-25 करोड़ हमारा मैक्सिमम ऑर्डर बुक कुछ महीनों में होता है साल के रिकॉर्ड में। तो ये रूटीन है। मतलब आप 2-4 ऑर्डर बड़े आने से 15-20% बुकिंग ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 12-15 करोड़ का ऑर्डर बुक होना वो नॉर्मल सी बात है। उतने बैकलोड में इंक्वायरी भी रहते हैं, डायलॉग चलते हैं, नेगोशिएशन होते हैं। तो ये रूटीन है। और हमें कॉन्फिडेंस है कि ये सीजन बेस्ड बिजनेस थोड़ा सा इफेक्ट करता है। तो अब आने वाला समय जो है वो तो एक और अच्छा मौका है। और फार्मा की जो एजेंसियां है, मतलब इंडिया के जो लीडिंग फार्मा इक्विपमेंट सप्लायर हैं, उनका तो हमें रनिंग ऑर्डर आता रहता है। तो उनका जो भी कुछ होता है उनको जनरली एक्सक्लूसिवली हम ही सप्लाई करते हैं। तो उनका भी जैसे कई हमारे डीलर है तो उनका ऑनगोइंग रनिंग ऑर्डर्स होते हैं। ओके ओके, दैट वाज हेल्पफुल सर। और मेरा सर सेकंड क्वेश्चन इज जस्ट अ क्लैरिफिकेशन। यू मेंशन, आपने बताया कि हम ये साल पिछले साल जितना रेवेन्यू कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर द ग्रोथ विल बी बिटवीन 25 to 30%, राइट? ओके ओके, एंड majority of this growth will come from the pharma sector? फार्मा भी है, डेयरी भी है। आप कोल्ड चेन लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज भी जो ग्रो कर रहा है। क्योंकि सालों से हमने जब लिस्टेड हुआ तब भी हमारे पास एक रिसर्च फिगर थे कि 60,000 व्हीकल की इंडिया में शॉर्टेज है। शायद ये करंट ईयर रनिंग ईयर में हमने हाईएस्ट नंबर्स में व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग किए हुए। जनरली 3 साल पहले ये समय पे हमारे पास लॉजिस्टिक में कोई बिजनेस नहीं होता है। करंट में हमें लगता है कि ये बड़ा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ऑल ओवर मार्केट की एक डिमांड को दिख के ऐसा लगता है। तो ऐसे कई सारे सेगमेंट है हमारे पास जहाँ से ये बिजनेस हमें लगता है कि और अच्छा आगे वाले सालों में हम लोग कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के लिए भी आपको बताया था, हम लोग एमोनिया ट्रंक की सॉल्यूशन देने का पिछले 2 साल से शुरू किया हुआ है। तो वो प्रोजेक्ट टीम भी अब एक एक्सपीरियंस हो गई है कंपनी के रिसोर्सेज को अच्छी तरह से मैनेज करके
तो ये मल्टीपल हम लोग आज जो काम कर रहे हो अगले 2 साल के बाद उसका क्या रिजल्ट आया उनके लिए भी साथ साथ हम लोग 2 साल पहले जो प्लान किया था, तो इसी का सब फ्रूट्स मिलना है अभी। तो नेक्स्ट ईयर में 25-30% ग्रोथ करना कोई बदकिस्मती से कोविड जैसा कुछ नहीं आ जाए तो हम आराम से कर सकते हैं, और हमारा पुराना ट्रैक भी उनके नजदीक है। ओके ओके ठीक है सर। माय फाइनल क्वेश्चन इज कि हु इज द क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर इन दिस लिस्टेड स्पेस? कोई कंपनी का नाम बता सकते हैं आप? जी, वैसे देखा जाए तो जो हम 5 वर्टिकल में काम कर रहे हैं ऐसी सिंगल कंपनी कोई इंडिया में नहीं है एज पर आवर इंफॉर्मेशन। कई सारे सेगमेंट जो है उसमें कॉमन है, जैसे देखा जाए कि कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल वगैरह है, जो उसमें ब्लू स्टार है, वोल्टास और कैरियर हमारे साथ हो सकती है। ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन में 2 या 3 कंपनियां हैं, जैसे सुरक्षा है, सब जीरो है, और अभी 1-2 कंपनी ने नया काम जो चालू किया है जिंदाल या रिनेक जैसा। और एमोनिया वर्टिकल में देखा जाए तो 3 या 4 कंपनी इंडिया में जो है लीडिंग काम कर रही है। तो सब कुछ मिला के देखा जाए तो 5 वर्टिकल में कोई ऐसी सिंगल कंपनी नहीं है जो 5 वर्टिकल में सॉल्यूशन दे सकती है। ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर द डिटेल एक्सप्लेनेशन सर, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Atul Bhandari, individual investor. Please go ahead. Hello, this is Atul. Basically, I'm an investor from Switzerland, but natively from India. So actually, I heard of this, the company from Luxembourg, visiting to Gujarat, and then especially when it comes to Gujarat and IceMake having presence there in the market and the cold storage space. So if you can give a bit more, actually I joined the call a bit late, so maybe I missed something, and sorry if I'm repeating something again which was already discussed. So the thing is, the main concern which I see, this is Luxembourg is a European company, and there are very different standard of products what is basically used in India. So now, if there is a joint venture and if there is something happening in this address and in this space, do you think that will IceMake be able to match the quality standards what is being expected from this company? See, actually, we have a confidence that we can match the quality, and only thing is that we have to take some technical know-how as per the standard. But we are capable to maintain that quality because our product is also CE certified, so there may not be any issue on the quality, and we are capable to match their quality. Okay, that's nice to hear. And the other thing on the stage of the discussion, just if you can give little bit more light, is that I heard that they visited the company. Is it already entered into a sort of a negotiation stage, or is it completely right now it's just they visited and we don't know further about it, the next steps? The visit is just finished 2 days back, so right now it is difficult to say that because there may be some internal procedure on that part. But whatever they have discussed and whatever they've seen at our plant, they were quite satisfied, and they have a long-term as well as short-term plan. So first, what we feel that we are on their number on their selection list. Okay. So okay, you are shortlisted in their let's say list of companies. Yeah, whatever discussion has, because they have many plans and they are looking for the enter in the Indian market. They are looking for a long-term plan, and I think if they are positive, they will declare shortly because they have a plan to enter in the market in the current financial year only. Okay, and I think with this pandemic, I think the countries have learned their lesson. So if people see that COVID as a one-time opportunity, that okay, this would be a one-off. Let's say if there is a business coming in this area, that would be a one-off. So I am basically rather in a different mindset.
because this will give, if there is an infrastructure to develop something, this can be used further in some other product as well. So do you think that if there is some joint venture which happens because of COVID thing, in my opinion, that the same thing can be sustainable for the future as well. The same infrastructure can be used as well for the further let's say, for further enhancing the business. Do you think are you of the same opinion, or what do you think? If there is a joint venture, will this be like a one-off thing, or it would be for a long term? Or see, the pharma segment or the healthcare segment is not only the limitations for us, because we are working in so many segments like food processing industries, and looking to the awareness in the people for the healthcare, so that demand will be increased as well as the food habits are changed. So naturally, food processing industries and the healthcare division will be on site, and dairy as well as the ice cream industries are on the top in the Indian market. So we are catering to dairies also, and so it will be a continuous, not only for the limited to the COVID only. It will be a long-term process. Okay. Okay, thanks a lot for answering the question. Actually, from the financial side, I think we have discussed enough in the other side. And then concerning the capex, if there is a need to enhance the capex, like the capacity expansion, if there is a requirement, are we poised in the sense of whatever, let's say, the first thing which comes to is the land? Do we have enough assets to expand even more if there is an opportunity coming? Yeah, so far as to double our revenue, we have quite capacity to double our revenue, and so far as other the transport refrigeration segment is there, it requires a huge space for the vehicle to keep there as well as the production. So in that part, we have also planned and also decided to keep our refrigeration transport unit to somewhere else, and nearby we have already acquired land nearby. So it will be also improving our, there will be a financial saving on long term, because as present it is working on a leasehold land. So after few years, 1 or 2 years, it will be annually it will be 50 to 55 lakh savings on the lease part, excluding the interest cost capex we are going to do. Okay, thanks. Yeah, good to know. And the very last question is about, I heard recently, I don't know if it's true or not, but internet gives lot of information, and it's just that that like Snowman Logistics. This company has a tie-up with I think SpiceJet for the distribution of So I don't know if we are, let's say, having similar tie-ups for facilitating the distribution of the vaccine or not, or if you see, so far as tie-up is concerned, there is no tie-up with right now anybody. Snowman is a different thing. It's there because they are in the service sector also. They have a logistic service they are providing with cold chain, and cold warehouses might be there. So they have an opportunity for that, but we don't have any idea for the other companies. Okay. Thanks a lot. That's it from my side. Thank you. The next question is from the line of Rajendra Patel, individual investor. Please go ahead. Mr. Patel, your line is in talk mode. Please go ahead with your question. What time? Mr. Patel, the audio is breaking from your line, sir. Mr. Patel, the audio is breaking from your line. Please check. Now is it okay? Yeah, now it is audible. Is it? This is the operator. Sorry to interrupt you. Mr. Patel, we are not able to hear you. Can you hear me? Hello? Is the line clear now? Yes, sir. Yeah. My question is, up to what temperature COVID vaccine is there so that we don't need to make additional capex?
If you can throw some light on it. Above -40, what was capex करूँ? See, if temperature range required is more than -40, then we have to think for the additional capex to develop the infrastructure for related to that equipment. Hello? Mr. Patel, we are not able to hear you, sir. Mr. Patel? Sir, we are not able to hear you. As there is no response from the current participant, I have muted the line. As there are no further questions from the participant, I would now like to hand the conference over to the management for closing comments. Before we close the session, on behalf of IceMec, Board of Directors and Management, we would like to thank you all for your participation in this investor conference call event. Thank you for listening and have a wonderful new year. Let's make India COVID-free in 2021. Stay safe, stay strong. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, on behalf of IceMec Refrigeration Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.